today we are going to discuss land, soil, and water resources. Land, soil, and water resources. So, here, land, soil, and water. You already know the meaning of these three things. So, I want to ask you, do you know what is resources? Have you attended the class when I was teaching resources chapter? Okay, so tell me, Ronak, what is a resource? Yeah, resource are the things through which we satisfy our needs. It can be anything. It can be a small needle or it can range up to a big sheep. Okay. Now, one more thing I want to ask you that do you think human are also resource? Human beings are a resource. Is it true or false? Yeah, because with the help of human beings we develop technology. Okay, we satisfy our need of technology, and there are many more things like services, the services which are being provided like doctors, engineers, teachers, lawyers. They all are human beings and they are satisfying our needs. Teachers are making us educated. Okay, doctors are treating the patient, so they are of our use. Okay, वो भी हमारे use में आ रहे हैं. That's why they are also resources. But today in this topic, we will read that how land, soil, and water are resources and how are we using it. Okay, हम किस तरह से use कर रहे हैं? What is the pattern that we are using land, soil, and water resources? But first of all, we'll discuss land resources. So, land is the basic necessity of every human being residing on the earth surface. अर्थ सरफेस में जितने भी ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं उनके लिए लैंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है. वाई? बिकॉज इट इज द प्लेस, इट इज द थिंग फ्रॉम विच वी कैन डेवलप अदर रिसोर्सेज टू. हम इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज की हेल्प से ही हम किसी दूसरे रिसोर्सेज को जेनरेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर लैंड से आप कौन सी रिसोर्सेज जेनरेट कर सकते हो? लाइक वी ग्रो क्रॉप्स. ओके, पीपल डू एग्रीकल्चर. लोग एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं. और क्रॉप्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स. क्रॉप्स भी क्या है? रिसोर्स है. अब अगर लैंड ही हमारे पास प्रेजेंट नहीं होंगे, क्या हम क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे? It will not be possible at all. Okay, so that's why these three resources, land resources, soil resources, and water resources, are the most important resources because this is the base from which we can develop other resources. यही बेस होते हैं जिनसे हम दूसरे रिसोर्सेज को फॉर्म कर सकते हैं, जेनरेट कर सकते हैं. ओके, नाउ यू ऑल नो दैट वी लिव ऑन अ अर्थ. we live on earth. हम अर्थ में रहते हैं जहां पर the surface of the earth is covered with water. How many percentage of the earth surface is covered with water? Total 71% of our earth surface is covered with water. हमारी अर्थ सरफेस की 71% जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है? It is covered with water bodies like oceans, okay, seas, rivers, lake. So 71% of जो भी अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. देन द रेस्ट 29% इज लैंड एरिया. जो रेस्ट 29% पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस है वो क्या है? लैंड एरिया है. एंड दिस इज very minimum, this is very minimum amount, or this is very minimum quantity of land that we have to develop other resources. बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे पास लैंड एरिया अवेलेबल है एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे यूजेस इस लैंड के करने होते हैं. लाइक वी डू एग्रीकल्चर ऑन दिस लैंड,
We make our buildings, we make roads, all the infrastructure, hospitals, banks, जितनी भी buildings हैं, जितने भी roads हैं, जितने भी bridges हैं, along with agriculture, forest area, pastures area. अब pastures area आप समझते हो, the area which is used for grazing animals, जो एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए, मतलब उनको चराने के लिए, उनके फूड के लिए जो लैंड अवेलेबल है, वो से हम कहते हैं पैस्चर लैंड. क्या कहते हैं? पैस्चर लैंड. इट इज written as PASTURE, pasture land. Okay, so the land area which is available for animal for grazing. Okay, उनके फूड एंड फॉडर के लिए जो लैंड अवेलेबल है उसे पैस्चर्स लैंड कहते हैं. ओके, 29% of land में we are doing this much of things. Okay, we are doing agriculture, we are making buildings, we are developing other infrastructures, we are extracting minerals. मिनरल्स समझते हो बच्चे? डिफरेंट मेटल्स लाइक गोल्ड, कोल, कॉपर, जिंक. इन सभी मिनरल्स को हम क्या करते हैं? लैंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं. हम लैंड में क्या करते हैं? डिगिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं और मिनरल्स को निकालते हैं. So what are the uses of lands? What do we do with the help of land resources? We do agriculture. First of all, it is the most important thing because we eat food and the food comes from the agriculture. Agriculture हम करते हैं. We make infrastructures. Now what is infrastructure? Every buildings. Okay, there are many buildings. I cannot tell houses, hospital, banks. I cannot name this much things. Okay, so I am just writing infrastructure. Okay, structure, infrastructure. एंड इसी 29% ऑफ लैंड में फॉरेस्ट एरियाज भी हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी प्रेजेंट है, एंड also pastures land. Okay, also pastures land. So we are using agriculture, we are using land resources for different purpose. Okay, हम अलग अलग कामों के लिए land resources use करते हैं. Now you will be very amazed, जो land area है, the land area, अगर हम land area को 100% में constitute या 100% में मेजर कर 100% में अगर इसे क्वांटिफाई करते हैं, तो इस 100% में 90% ऑफ जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के जितने भी पीपल हैं, वो इस 90% 90% of the world's population is residing in only 10% of the land area. मतलब जो भी लैंड एरिया हमारे पास अवेलेबल है, ओके, हम किसी भी चीजों को किससे देखते हैं? 100% में देखते हैं, है ना. सो लैंड एरिया के 100% में से सिर्फ 10% ऑफ लैंड में ही 90% ऑफ पॉपुलेशन रह रही है. ओके, लैंड एरिया 10% है और टोटल पॉपुलेशन, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसकी 90% ऑफ पॉपुलेशन इसी 10% ऑफ लैंड में रह रही है. सो व्हाई इज दैट? क्यों? Because the climatic condition, the topography, the temperature is not same everywhere in the earth surface. अर्थ सरफेस में हर जगह टेम्परेचर मॉडरेट नहीं है, ठीक है, कहीं पर एक्सट्रीम कोल्ड है और कहीं पर एक्सट्रीम हॉटनेस है, मतलब कहीं बहुत ही ज्यादा ठंड है और कहीं पर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है. अब ऐसे में लोग क्या, या पॉपुलेशन क्या प्रेफर करती है? पीपल प्रेफर मॉडरेट क्लाइमेट टू लिव इन. लोगों को मॉडरेट क्लाइमेट में रहना पसंद होता है और मॉडरेट क्लाइमेट हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसीलिए आप क्या देख रहे हो कि 10% ऑफ लैंड में ही 90% ऑफ पीपल रह रहे हैं. ओके, बाकी की जो 90% लैंड एरिया है वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, वो इसी तरह से अलग अलग कामों के लिए खाली पड़ी है, वहां पर लोग नहीं रहते. ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है. हैबिटेशन मीन्स अ प्लेस टू लिव इन. ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट रिलीफ टोपोग्राफी. अब टोपोग्राफी क्या होती है? लाइक वी नो दैट अर्थ सरफेस इज नॉट इवन एवरीवेयर. अर्थ की जो सरफेस है वो इवन नहीं है. हर जगह पर प्लेन एरियाज नहीं है, हर जगह पर माउंटेनियस रीजन नहीं है, हर जगह पर हमारे लिए
फर्टाइल सॉइल अवेलेबल नहीं है, फर्टाइल लैंड अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई पीपल आर लिविंग इन एन एरिया वेयर इट इज मॉडरेट क्लाइमेट. क्लाइमेट वहां पर मॉडरेट है, ना ही ज्यादा ठंडी है ना ही ज्यादा गर्मी है. और इसीलिए आप देखोगे जो भी आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स हैं, दे आर नॉट हैबिटेड और इनहैबिटेड बाय पीपल. आर्कटिक रीजन इन नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक रीजन इन साउथ पोल, ये दोनों ही क्या है, लीस्ट हैबिटेटेड है. मतलब यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं रहते हैं. अगर कोई लोग जाते भी हैं तो रिसर्च के लिए जाते हैं, ट्रिप्स के लिए जाते हैं, बट पीपल डू नॉट रिसाइड देयर. क्यों? क्योंकि वहां पर क्लाइमेट जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है. ओके, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, जहां पर ठंड होती है वहां पर टेम्परेचर लो होती है, और जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है वहां पर टेम्परेचर क्या होती है, हाई होती है. ठीक है, तो अगर मैं आपको सहारा, लाइक वी ऑल आर लिविंग इन इन इक्वेटोरियल रीजन, हम इक्वेटोरियल रीजन में रह रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ से उठाकर अगर मैं सहारा डेजर्ट में रख दूं, तो क्या आप वहां पर सरवाइव कर पाओगे? नो, एनीबडी कैन, नो वन कैन डू दैट. ओके, बिकॉज वी आर हैबिचुअल, वी आर अडेप्टेड टू दिस सिचुएशन. हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या अडेप्ट हो चुके हैं. ओके, that's why it is not possible for us to live in Sahara or to live in Arctic or in Antarctic region. Okay, so are you clear about this thing? क्यों कहीं पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, 10% ऑफ लैंड में ही सारे लोग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर हर जगह पर होना कंपलसरी है. अगर एग्रीकल्चर नहीं होंगे तो क्रॉप्स नहीं होगी, और क्रॉप्स नहीं होंगे तो लोग खाएंगे क्या? ठीक है, सो फर्टाइल लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेन एरिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्लेन एरियाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. प्लेन एरियाज क्यों जरूरी है? प्लेन एरियाज आर आइडियल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेन लैंड होते हैं, ठीक है, मतलब वो जो इवन सरफेस होती है, वहां पर एग्रीकल्चर करना इजी होता है, वहां पर सेटलमेंट्स बिल्ड करना, दैट मीन्स वहां पर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना इजी होता है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पहाड़ पर जाकर एग्रीकल्चर करना है, माउंटेनियस रीजन में एग्रीकल्चर करना है, देन वहां पर there is a lot of difficulty, there's a lot of hard work that you have to put in. You have to put in a lot of हार्ड वर्क टू डू एग्रीकल्चर देयर. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहाड़ी इलाकों में लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, बट वहां पर उतनी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होती है, उतनी ज्यादा क्रॉप नहीं होती है. वहां पर लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां पर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वहां पर रास्ते बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी वो परफेक्ट नहीं होती है. लाइक मेटल रोड हम आज जिस तरह से यूज करते हैं, मेटल रोड समझते हो, जो पक्के रास्ते होते हैं, ठीक है, जो टार के बने हुए होते हैं, अलकतरे के बने हुए रोड होते हैं ना, जो प्लेन होते हैं बिल्कुल, उस तरह के रोड्स को मेटल रोड कहते हैं. तो माउंटेनियस रीजन्स में आपको कभी भी मेटल रोड नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगी. सो दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर प्लेन एरियाज. ओके, प्लेन एरियाज को लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर सेटलमेंट्स बनाना इजी होता है, और वहां पर लोगों को एग्रीकल्चर करने में आसानी होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड, जिस तरह की लैंड होती है, ठीक है. अब मान लीजिए व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिया, इंडिया की जो नॉर्दर्न प्लेन है, आपने नॉर्दर्न प्लेन सुना है कभी? लाइक इंडिया की जो अपर मोस्ट पार्ट है, अब मैं हिमालयाज के नीचे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोलकाता, ये सभी क्या प्लेन एरियाज है. ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग हैं लैंड को किस तरह से यूज कर रहे हैं? मोस्टली दे आर यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर लैंड एरिया क्या है, माउंटेनियस ना होकर प्लेन एरियाज है. अब प्लेन एरियाज में लैंड क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी गंगा फ्लो होकर ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश इनसे बहती हैं, तो वो अपने साथ एल्यूवियम लेकर आती है. एल्यूवियम समझते हो, फाइन सॉइल पार्टिकल्स जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं. अब फर्टाइल लैंड में लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई पीपल
अकॉर्डिंग टू द लैंड, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड। अब मान लीजिए कोई एक लैंड बैरन है, ठीक है, मतलब बंजर है, वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, तो वहां पर लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, वहां पर लोग इंडस्ट्रीज बिल्ड करते हैं, वहां पर लोग अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, ब्रिजेस, ये सभी बनाते हैं, ठीक है। सो द लैंड विच वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट लैंड, हम जो भी लैंड यूज करते हैं, हर एक कंट्री में ना अलग अलग पोर्शंस डिवाइड होती है कि फॉरेस्ट के लिए इतने परसेंट ऑफ लैंड को यूज किया जाएगा, पैस्चर के लिए इतने परसेंट ऑफ लैंड को यूज किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए इतने परसेंट ऑफ लैंड को यूज किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज लैंड यूज पैटर्न। इसे हम क्या कहते हैं? लैंड यूज पैटर्न। इन अ कंट्री डिफरेंट प्रपोर्शन हैज बीन गिवन। ओके, एक कंट्री में अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर दी गई है अलग अलग पर्पसेस के लिए। लाइक इन इंडिया, यहाँ पर जो लैंड अवेलेबल है उसके 50% ऑफ लैंड में हमें एग्रीकल्चर करना होता है या हम एग्रीकल्चर करते हैं। सो दिस इज द लैंड यूज पैटर्न विच इंडिया इज फॉलोइंग अप। सो ये एक लैंड यूज पैटर्न है जो इंडिया फॉलो कर रही है। अब मान लीजिए किसी ऐसी कंट्री जो क्या बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। अब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है तो वहां पर क्या क्रॉप्स वहां पर इजिली ग्रो कर सकते हैं? लाइक अगर मैं राजस्थान की जो डेजर्ट, थार डेजर्ट है, वहां की बात करूं तो वहां पर क्या है, सैंडी सॉइल है, दैट मीन्स वहां पर सैंड है सिर्फ। तो क्या वहां पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो किसी दूसरे कंट्री में लैंड यूज पैटर्न क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस तरह के लैंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल्स, रौनक, आर यू गेटिंग इट? इज देयर एनीवन एल्स except of Ronak? Is there anyone else who is attending this class? Let me know. Okay, yeah. So मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अलग अलग कंट्रीज की लैंड यूज पैटर्न जो होती है, लैंड को यूज करने का जो ढंग होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर जगह की लैंड, हर जगह की टेम्परेचर, हर जगह की ह्यूमिडिटी सेम नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूं कातर देश की, मतलब जो अरब कंट्रीज है, कातर हो गए, सऊदी अरब हो गए, इन सारी कंट्रीज में आप क्या देखते हो, वहां पर एग्रीकल्चर इज नॉट डोमिनेंट। एग्रीकल्चर डोमिनेंटली वहां पर नहीं किया जाता है, ज्यादा अमाउंट में वहां पर लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो लैंड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा वहां पर मैं बोल सकती हूँ कि वहां पर बहुत ही एक्सट्रीम हॉटनेस होती है, हॉटनेस होती है। अलोंग विद दैट वन मोर फैक्टर इज देयर कि वहां पर क्या ऑयल वेल्स है, वहां पर क्या जो पेट्रोलियम है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो बताइए वहां की गवर्नमेंट क्या कहेंगी? वहां की गवर्नमेंट का प्रेफरेंस होगा ऑयल वेल्स के तरफ, है ना, क्योंकि उससे क्या, वो इनकम जनरेट करते हैं, टैक्स जनरेट करते हैं, वो उस ऑयल को, जो भी पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये सब जो वहां के तेल के कुएं समझते हो आप, सऊदी अरब में तेल के कुएं हैं, वहां पर थोड़े ही डीप में अगर हम डिग करते हैं अर्थ को तो तेल बाहर आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या लोग वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे उस लैंड में? नो। सो प्रेफरेंस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड। प्रेफरेंस दिया जाता है किसे? जहां पर जिस तरह की लैंड होती है। और इंडिया में एग्रीकल्चर, आप जानते हो दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। लोग बोलते भी है कि यहाँ की जो 75% ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, मतलब एग्रीकल्चर करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोर्शन बांट दी है, डिवाइड कर दी है कि आपको इस पूरे लैंड एरिया का 50% लैंड एरिया में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट वी कॉल लैंड यूज पैटर्न। इसे हम क्या कहते हैं? लैंड यूज पैटर्न। अब देखिए लैंड, जी, लैंड यूज पैटर्न क्या होते हैं? चेंज भी हो सकते हैं। अब क्यों चेंज हो सकते हैं? कैन यू टेल मी? अगर मान लीजिए हम आज किसी एक प्लेस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग एग्रीकल्चर एंड वी नो दैट इन दिस लैंड देयर इज अ ह्यूज कंटेंट ऑफ मिनरल्स। हमें पता है कि इस लैंड में जहां पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा मिनरल्स हैं,
ठीक है, चाहे कोल का डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कॉपर के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कोई एक मिनरल बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उस लैंड के नीचे, ठीक है, बट द टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग दैट मिनरल आउट ऑफ दैट अर्थ सरफेस। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उस वक्त अवेलेबल नहीं है कि हम उस कॉपर डिपॉजिट्स या कोल डिपॉजिट जो भी है उसे बाहर निकाल सके और यूज कर सके। देन उस टाइम पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है उसे निकालने के लिए, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, तो हम वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बट द डे व्हेन वी विल डिस्कवर, व्हेन वी विल इन्वेंट, व्हेन वी विल फाइंड आउट द टेक्नोलॉजी to extract that minerals out of the earth's surface, we will stop doing agriculture and we will start doing mining over there। हम वहां पर क्या करने लगेंगे, उस एग्रीकल्चर को हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे और हम माइनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कंडीशंस दूसरी हैं, सिचुएशन दूसरी है, हमारे पास हम उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस मिनरल को बाहर निकालने के लिए वी हैव टेक्नोलॉजी अवेलेबल। ओके, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अब देखो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गया ना, पहले जिस लैंड में एग्रीकल्चर हो रहा था, अब उस लैंड में लोग क्या करने लगे हैं, उस लैंड में लोग माइनिंग कर रहे हैं। One more situation I want to give you. Suppose you all know, we all know that the population of the world is increasing very rapidly। बहुत ही जल्दी ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, डे बाय डे हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है। अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी नीड्स भी बढ़ेंगी, their needs will also increase। ओके, अब एक अगर मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में मान लीजिए 2 और 3 मेंबर्स ऐड होते हैं, तो उनकी फूडिंग, ठीक है, उनकी क्लोथिंग, उनके रहने की जगह, मान लीजिए एक फैमिली बढ़ती है तो उसके लिए तो हमें रहने की जगह चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे, वो तो वाटर के ऊपर हाउस बोट में जाकर नहीं रहेंगे, वो बिल्ड कहाँ करेंगे हाउसेस को, दे विल मेक देयर हाउसेस ऑन द लैंड, ठीक है, वो जहां पर अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो हो रहा है, बट अब हम लोगों के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है हाउसिंग, क्लोथिंग और फूडिंग, उसे फुलफिल करने के लिए लोग क्या करते हैं, उस लैंड एरिया को जो पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज की जा रही थी, अब उसे लोग हाउसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज करने लगते हैं। सो लैंड यूज पैटर्न कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज द सिचुएशन चेंजेस। जैसे सिचुएशन चेंज होती है हम अपने लैंड यूज पैटर्न को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पीरियड में अगर इंडिया में 50% ऑफ लैंड एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज की जा रही है, तो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स और इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स इट विल नॉट बी द सेम, ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है, अगले 15 साल या 10 सालों में सिचुएशन बदल सकती है, पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ सकती है, और आज हम 50% ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सो हो सकता है हम 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के बाद हम सिर्फ 40% ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर करें, क्योंकि हमें रोड्स भी तो बनाने हैं, हमें हाउसिंग फैसिलिटीज भी तो लोगों को प्रोवाइड करनी है ना। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट लैंड यूज पैटर्न। ओके, इस तरह से लैंड यूज पैटर्न चेंज होते हैं बाय द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अंडरस्टूड। Okay, if you have any doubts, then you can ask me. Do you have any doubts? Okay, okay. So, this is what land resources are and land use pattern इसे ही कहते हैं। Okay, अब देखिए in India I want to tell you कि जो इंडिया है वहां पर लैंड रिसोर्सेज किस तरह से यूज किए जाते हैं। सो इन इंडिया 50% ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, ठीक है, 50% ऑफ जो लैंड है वो क्या एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है, एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है, एंड 21% ऑफ द लैंड इज द फॉरेस्टेड एरिया। जो 21% ऑफ लैंड है इंडिया की वो क्या है, फॉरेस्टेड है, मतलब वहां पर नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल है। ओके, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है, दैट मीन्स कितने परसेंटेज हो गए बताइए, 50 प्लस 21 50 प्लस 21 71, कितने परसेंटेज ऑफ लैंड अब हमारे पास बच गए, यस। ओके, सो ये जो 29% ऑफ लैंड है ये नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस मतलब क्या, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स क्या क्या हो सकते हैं बता सकते हो, लाइक बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग ब्रिजेस,
और अदर थिंग्स, जैसे हम जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो भी कचड़े होते हैं उसे लोग ओपन स्पेस में, आपने कभी अगर रोबोट देखा होगा तो जब चिट्टी को डिस्ट्रॉय करके उसे ले जाया जाता है तो आपने देखा होगा कितने बड़े स्पेस में कितना सारा गार्बेज होता है ना। तो इस 29% ऑफ लैंड में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, इसमें बिल्डिंग्स बनते हैं, इसमें रोड्स बनते हैं, ओके, इसमें जो वेस्ट है उसे डिस्पोज किया जा, यस, ब्रिजेस बनते हैं। so there are many things which is happening in the non agricultural land, okay, इसे क्या कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ओके। आपको याद रहेगा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से कितने कितने परसेंटेज ऑफ लैंड को किसके लिए यूज किया जाता है, याद रहेगा, ओके। सो नाउ व्हाट इज एरेबल लैंड, अब एक और चीज जो आपको पढ़नी है वो है एरेबल लैंड। सो एरेबल लैंड इज अ लैंड विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, वैसे लैंड जहां पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, द लैंड विच इज आइडियल फॉर डूइंग एग्रीकल्चर, दे आर नोन एज एरेबल लैंड, उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। लाइक जो फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, जहां पर हम एग्रीकल्चर कर सक रहे हैं, वो क्या होती है, एरेबल लैंड होती है। So in India, 50% of the land is arable. That means which is suitable for doing agriculture. ये वैसी लैंड्स होती हैं जहां पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल होता है, ओके। नाउ लैंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ओके, लैंड भी दो तरह के होते हैं, लैंड इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप समझते हो, मालिकाना हक, ओके। सपोज इफ यू ओन अ पीस ऑफ लैंड, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, दैट विल बी प्राइवेट लैंड रिसोर्सेज, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट लैंड रिसोर्सेज, उसे हम क्या कहते हैं, जी, प्राइवेट लैंड रिसोर्सेज। तो प्राइवेट लैंड, या, सो प्राइवेट लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, सो अ पीस ऑफ लैंड, अ प्लॉट ऑफ लैंड विच इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल मतलब कोई एक इंसान का मालिकाना हक अगर किसी लैंड पर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट लैंड, क्या कहते हैं, प्राइवेट लैंड। अगर आपके फादर के पास कोई, या अगर आपके फादर या आपके नेबरहुड में या किसी के पास भी बोलते हैं कि ये मेरी जमीन है, तो वो क्या है, एक प्राइवेट लैंड है, उस पर किसी दूसरे का ओनरशिप हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता है अनटिल वी सोल्ड देम टू अदर पर्सन, जब तक हम किसी दूसरे से उसे सोल्ड नहीं करते हैं, बेचते नहीं है, तब तक वो क्या, आपकी लैंड रहेगी। और फिर भी वो क्या एक इंडिविजुअल की ही रहेगी, अगर आप किसी और को बेचते हो तो वो किसी एक के पास ही वो लैंड रहने वाली है, ठीक है। सो लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट तो हमने पढ़ा प्राइवेट लैंड, अनदर वन इज लैंड विच इज ऑफ अ कम्युनिटी। अब देखिए प्राइवेट लैंड तो हमने पढ़ लिया, सेकेंड वन इज कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी लैंड क्या होती है, सो कम्युनिटी लैंड इज अ piece of land or the land area which is used by a community। अब community क्या हो सकती है, जैसे एक विलेज में, ठीक है, जो ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड होता है, खेलने की जगह होती है, वो क्या वहां पर कोई एक जाकर खेलता है, नहीं, वहां पर बहुत सारे उस विलेज के जितने लोग हैं सभी जाते हैं अपने अपने कामों के लिए, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कम्युनिटी लैंड, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी लैंड कहते हैं, ठीक है। सो द लैंड एरिया और द प्लॉट ऑफ लैंड विच इज ओन्ड बाय community, they are known as community land. Understood? Is that clear? If you have any doubts then you can ask me. So this was all about land resources. Now land resources के बाद हमें soil resources पढ़ना है, so that is another new topic, okay, so that we will read in next class. But if you have any doubts in this class or any of the topic which I taught you, like मैंने आपको बताया resources क्या होते हैं, मैंने आपको बताया land use pattern क्या होते हैं, then आपको मैंने बताया how land use pattern can change over the period of time, कैसे एक लैंड एरिया या लैंड यूज पैटर्न, जिस तरह से लैंड को यूज किया जा रहा है वो समय के साथ बदल सकता है। सेकेंड थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताई, दैट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब इंडिया में किस तरह से लैंड को यूज किया जाता है, कितने कितने प्रपोर्शंस में अलग अलग लैंड्स को डिवाइड किया गया है। एंड देन लास्टली आई टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ लैंड, किस तरह के कितने तरह के लैंड्स होते हैं। सो इन दैट आई टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स,
प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ओके, ये सारी टॉपिक्स मैंने आज डिस्कस की। अब आप बताइए आपको किस में प्रॉब्लम है? In which topic do you think that I don't know this topic? I cannot tell anyone about this topic. So you can tell me. Okay. So what should I understand with this? What should I know with this silence? आप बताओगे आपको समझ में आया नहीं आया? At least let me know. Okay. So, Ronak, I am ending this class right now, but before that, just turn on your video. I have to take a screenshot.